हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है कैंपस से। मैं हूं आपका दोस्त रक्षित और अब तक आप जान चुके होंगे कि हमारे इस शो में हम आपको सैर कराते हैं हर हफ्ते एक नए कैंपस की। तो आज हम आपको लेकर के आ गए हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज यानी कि मैमसी के कैंपस, जो कि है नई दिल्ली के दिल्ली गेट से कुछ ही दूरी पर। और आप बिल्कुल सही समझे हैं कि कैंपस का नाम देश के स्वतंत्रता सेनानी और पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर रखा गया है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स टेक अ लुक इनसाइड द वॉल्स ऑफ वन ऑफ द लीडिंग मेडिकल कॉलेजेस ऑफ आवर कंट्री। जिस कॉलेज से इतने सारे पद्म अवार्डीज निकले हैं, जहाँ की लेगेसी इतनी पुरानी हो, वहाँ की हिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग होगी, आइए जानते हैं कॉलेज के डीन डॉक्टर सुशील कुमार से। This is a college for the medical education, advancement and for the betterment of the patient care also. The students who come here, they are trained in an excellent way and they are able to tackle the problems of the society, which is the need of the hour in the country. This medical college was actually initially a premises for the old jail, which was subsequently shifted to Tihar jail. In 1958, this medical college was constructed, and the first batch of the MBBS students was 50 students, and subsequently the strength of this medical college grew from 50 to 100, 180, and present we have 250 students. Apart from the undergraduate students, we have the postgraduate students numbering around 225 and 21 different subspecialties of the medicine. Also have the postdoctoral courses in our one of the big hospital, GB Pant Hospital, which is part of this complex, where we have DM courses in the cardiology, neurology, and we have the MCH program also for the neurosurgery. So in all, we have all the different areas of education regarding the medical education. This college has seen so many changes over the years. To start with, it was only a medical college. Subsequently, the hospitals came up. In 1960, around that GB Pant came, and subsequently Guru Nanak Eye Center was added on. The Loknayak Hospital used to be called Irwin Hospital, okay, in the British time. Along with that hospital was New Delhi TB Center also. So this complex has big hospitals as well as college. Students, which I told you, at present we have 1250 undergraduate students. They are given education to the best of our ability. Now, sir, I would like to ask you about your history with the college, with the campus. I am a graduate of this very medical college. I joined in 1975. I came from a simple village. I graduated from this college, went to All India Institute for the post-graduation, had my post-graduation in ophthalmology, and then subsequently as faculty member I came back here, and today I am sitting in front of you as Dean of the Medical College. Now I would like to ask you about some of the qualities that you think suit best for a medical student. For any student opting for the medicine field, certain qualities are very must, and these are, first of all, aptitude has to be there. We should not force any student for any specialty. If person is interested, only then he should opt for that specialty. That is one thing. Person should be hardworking, sincere in his studies, and should be very faithful to whatever he does in his career. So education is one thing which he has to acquire over a period of time. Now this is not one thing that somebody is influenced by the parents or the peers or our fellow colleagues. It should not be like that. Person should analyze, introspect, what I can learn, what can I go up to. So that is very important. So hard work and your self introspection is very must.
and that everyone should do. Whether you take up medicine field, you take say multimedia or engineering side, that it has to come from your own side. It should not be the family pressure, parents pressure. Now there's a question that would interest our viewers the most. How can one enter the premises of this college as a student? How can they join this college? Entry to the MBBS course here is through the NEET that Government of India holds, and after your 10+2 examination, the competitive exam occurs. After the competition in the NEET examination, different medical colleges are allotted, and our college is one of the top 10 medical colleges, presently ranked 3rd. So people opt for it. And what about other courses, sir? After the MBBS course, people go for the post graduation, MD and the MS courses in different specialties of the which we teach in the MBBS. They specialize in those areas. Again, there is a NEET examination, and competition is there, and depending on the seats, you have to choose the area where you are interested in and where you can likely to get the seat. This is the calculation you have to do. Now we have around 225 post graduation seats and 21 different specialties of the undergraduation course. So after this MS course, people go for the DM and the MCH courses, which are there in our GB Pant hospital. The DM courses are in the cardiology, neurology, gastrology, and these surgical branches have the MCH courses. They are again of 2 years. MS MD courses are for 3 years, MBBS courses for 5.5 years. This is the total duration. If you want to excel in particular specialty, become specialist, super specialist, so this is the period you have to spend. So now finally a message for the students who want to join this college, and some of your alumni, some star students who are at high places from this college. Now this college is, I told you, is one of the prestigious colleges. We have so many laurels and awards given to this particular, and the faculty member here. We had 6 Padma Bhushan awardees, around 10 Padma Shri awardees here, and BC Rai award, which is given in the medicine field. We have around 7 or 8 people who have been awarded. So students also look at the history of a particular college and the study what medical college has, what specialties, what infrastructure, what are the facilities available. So after that they also opt for a particular medical college. So I am glad that people are choosing this medical college because of the performance in the previous years by our seniors, ancestors. So it's the blessings of those people that this college has come up to this level. Thank you so much, sir. Thank you for the information. अब हम आपको बताएंगे यहाँ के कुछ कोर्सेज के बारे में डिटेल में, और उसके लिए मैं आपको ले जाऊंगा यहाँ की फैकल्टी के पास। हमारे पास बच्चे जो जिनका दाखिला यहाँ होता है वो नीट के थ्रू ही होता है। बच्चे जब आते हैं तो उनको हमारे को भारत सरकार नॉमिनेट करती है, जो मेडिकल कॉमन काउंसलिंग है उनके थ्रू बच्चे हमारे पास नॉमिनेशन होके आती है। 4.5 साल का कोर्स है, जिसमें अभी इस साल से MCI के तहत एक नया कोर्स शुरू हुआ है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन का कार्य, नया सिलेबस आ गया है। इससे पहले 4.5 साल का जो कोर्स रहा करता था उसमें फर्स्ट ईयर हुआ करता था 1 साल का, जिसमें 2 सेमेस्टर होते थे। सेकंड प्रॉफ में 3 सेमेस्टर होते हैं 6-6 महीने के, यानी 1.5 बरस। उसके बाद थर्ड प्रॉफ पार्ट 1 जिसमें 2 सेमेस्टर रहते हैं यानी 1 बरस, 4.5। और लास्ट जो होता है वो थर्ड प्रॉफ 2 यानी कि फाइनल ईयर, जिसके भी 2 सेमेस्टर होते हैं, टोटल समय 1 साल। तो 1 साल, 1.5 साल, 1 साल और 1 साल यानी 4.5 साल, जिसके बाद उनकी कंपलसरी ट्रेनिंग होती है जो कि 1 बरस की 12 महीने की मैंडेटरी इंटर्नशिप रोटेटिंग होती है। तो 4.5 साल में बच्चे जब आते हैं तो थोड़े से डरे सहमे, स्कूल से निकले हुए,
मतलब बच्चे रहते हैं, फर्स्ट ईयर में जब वो एनाटॉमी में करते हैं तो उनको ह्यूमन बॉडी से सब कुछ इंटरेक्शन होने के बाद एक नया नज़रिया हो जाता है, उनके कॉन्फिडेंस में ग्रोथ होती है। और जब क्लिनिकल में जाते हैं सेकेंड ईयर में तो यकीन मानिए दे ग्रो। थर्ड ईयर आते आते वो कॉन्फिडेंस बहुत लेवल पे आ जाता है। फाइनल ईयर में उन्हें रियलाइज़ होने लगता है कि कुछ समय और फिर हम कम से कम थ्योरी पार्ट से डॉक्टरेट करके फिजिकल में आ जाएंगे। एंड बाय द टाइम दे गो आउट दे आर कॉम्पिटेंट एंड कंपैटिबल, वेरी कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स, वे आर ग्रोन अप डॉक्टर्स। और जब बाहर जाते हैं तो बस फिर उड़ान भरने का समय रहता है। बच्चा जब ज्वाइन करता है उसका मैक्सिमम इंटरेक्शन इन अ मेडिकल कॉलेज इज विद एनाटॉमी डिपार्टमेंट। अकॉर्डिंग टू द न्यू करिकुलम ऑफ MCI वी हैव 675 आवर्स ऑफ एनाटॉमी इन द शेड्यूल जो आया है, एंड उसके ऊपर वी हैव टू गिव देम 30 आवर्स ऑफ अर्ली कम क्लिनिकल एक्सपोजर और 30 आवर्स ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। एनाटॉमी इज़ अ वेरी विजुअल सब्जेक्ट। आपको until you see the structures you do not understand। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं हम उनको पढ़ाते हैं, दे डू द डिसेक्शन इन द डिसेक्शन हॉल। कोई प्रॉब्लम है तो आके यहाँ पर भी देख लेते वो वाला पार्ट विच हैज़ नॉट बीन डिसेक्टेड। एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू मैनी सर्जन्स एंड क्लिनिशियंस हु वांट टू रिवाइज देयर एनाटॉमी, बिकॉज एनाटॉमी इज़ ऑलवेज इट्स द सेम। सो वो आके यहाँ रिवाइज करते हैं, अपना देखते हैं बिफोर अ केस। दे कैन ऑलवेज कम सी सर्टन स्ट्रक्चर्स एंड दे गो बैक व्हेन दे आर डूइंग सम सर्जरीज। सो इट्स हेल्पफुल नॉट ओनली टू आवर स्टूडेंट्स, ऑल्सो टू द सीनियर्स एंड डॉक्टर्स ऑल्सो, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स ऑल्सो। हमारे एनाटॉमी में जो स्पेशलाइजेशन है वो MD एनाटॉमी है, और जो MBBS करने के बाद जो MD में आते हैं एनाटॉमिस्ट के लिए मेन है टीचिंग। वी हैड अ म्यूज़ियम, बट अभी लास्ट ईयर हमारे ये म्यूज़ियम वी हैव एक्चुअली मॉडिफाइड, एंड उसको हमने थोड़ा सा सेग्रीगेट करके हमने एक साइड हमने हार्ड पार्ट्स कर दिए, एक साइड हमने रीजनल एनाटॉमी कर दिया, और द एंट्री पाथ वे डोर वे के साथ जो है एंट्री, उसमें वी हैव गॉट सेक्शन विच इज़ शोइंग अस डिपिक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। Community medicine deals with health of the masses basically. It's application of medicine on a large scale so that you are able to care for the community, starting from the family to the international level, the world in fact. So all national health programs, everything that we do on a large scale is included in it. And there are other components too. Research is a major component of it. Providing comprehensive health care is what we teach our students. So this is a very dynamic and evolving subject. They start in the first semester itself. When they come to the medical college, that's the time we start with them. And in fact, with the revised curriculum, the foundation course begins the day they join, and that also we initiate them into the subject on that day. And what we teach them is, how to deal with the problems of medical problems as well as social determinants of health. A component which is very important but which is not really taken into mainstream medicine. And then forming policies, programs, management, so that health reaches out to the masses. Undergrads, they just need to clear the exam, of course, but if they choose post-graduation in the subject, then they go into international NGOs like WHO. That's the highest, aspiration of people, but otherwise there's a lot of scope in our local government, because all the planning management as such is taught in this subject. So all program heads, national health programs, they are led by the people from community medicine. पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में एक्चुअली स्टूडेंट्स फॉर्मली तो सेकेंड ईयर में ही आना शुरू करते हैं आफ्टर दे हैव डन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ कोर्स इन एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद जब उन्होंने नॉर्मल सब कुछ पढ़ लिया होता है तो हम सेकेंड कोर्स ऑफ क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, कैसे होती हैं, किस कारण से होती हैं, और उनका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, वो हम सब कराते हैं। पर अब न्यू मेडिकल एजुकेशन करिकुलम में ये सारी चीज़ें हम इंटीग्रेटेड वे में शुरू से ही उनको बताना शुरू करना चाह रहे हैं, ताकि बच्चा जब फर्स्ट ईयर में ही आए तो उसको थोड़ी ओरिएंटेशन हो जाए कि वो आगे क्या सीखने वाला है। MBBS करने के बाद नीट एग्ज़ाम होता है, जिसमें पास करने के बाद बच्चे चूज़ कर सकते हैं कि वो क्या सब्जेक्ट करना चाहते हैं। उसमें MD पैथोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, जिसमें वो पैथोलॉजी का डायग्नोस्टिक्स सीख सकते हैं। टिश्यू डायग्नोस्टिक्स, ब्लड का डायग्नोस्टिक्स की बीमारियाँ कैसे है और क्या कारण से हो रही हैं, वो सब कर सकते हैं।
पहले सिर्फ इतना ही था कि सिर्फ हिस्टोपैथोलॉजी पर करते थे, पर अब बहुत सारी नई टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें आप कुछ सिर्फ सेल्स निकाल करके डायग्नोसिस बना सकते हैं। उसको हम साइटोपैथोलॉजी बोलते हैं। ब्लड के डायग्नोसिस, एनीमियाज, ल्यूकीमियाज, वो सब डायग्नोसिस करते हैं। और अब एडवांसमेंट इतनी हो गई है कि अब हम देखना चाह रहे हैं कि जीन से कैसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स भी पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, जिसमें आप बहुत अच्छा कैरियर रिसर्च में, डायग्नोसिस में और मरीज़ को एक्चुअली टारगेटेड थेरेपी देने में कर सकते हैं। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट के लिए आपकी बहुत ज़रूरत है ताकि आप बता सकें कि इस मरीज़ के लिए टेलर मेड थेरेपी क्या होगी। We have 7 hostels for girl students and for boy students combined, and they're separate hostels. Unfortunately, because we have a lot of student load, 250 per year, and some of them don't pass, so there's remaining students also who remain. So we have to have triple seaters or double seaters, and only few are single seaters. And we give priority to the students who are outside Delhi, so they are accommodated within first month of joining, and the others are only accommodated after second year. किसी भी टेक्निकल कोर्स में जब टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एक हम देखते हैं कि एक ह्यूमन टच कहीं कहीं गायब होने लगता है। तो उसी उद्देश्य से उस ह्यूमन टच को वापस लाने के लिए हमने गुरुकुल इनिशिएटिव शुरू किया था, जो कि बच्चों में एक सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने के लिए काम करेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स हों या कम्युनिटी की तरफ उनका जो समर्पण होना चाहिए उसके बारे में बात करता हो, और बाकी चीज़ों से जोड़ने के लिए, बाकी सॉफ्ट स्किल्स से जोड़ने के लिए, लीडरशिप स्किल्स से जोड़ने के लिए। तो गुरुकुल की शुरुआत हमने 2 साल पहले करी थी, और उसका एक और उद्देश्य था कि ये जो सीनियर्स और जूनियर्स और फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच का जो गैप है उसको कम करने के लिए। तो ये गुरुकुल एक ग्रुप है स्टूडेंट्स और फैकल्टी और रेजिडेंट्स का, जो एक साथ मिलके कई इश्यूज़ पे काम करता है। हमारा मेन विज़न है कि मैमसी को एक बेटर प्लेस बनाना और मोलानियंस को एक बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स बनाना। गुरुकुल में हमारा हमेशा एक मोटो रहा है, लर्न लीड इंस्पायर का। हमारी हमेशा से फिलॉसफी रही है कि जो काम कि आप इनिशिएटिव लीजिए और हम सब गुरुकुल परिवार मिलके आपकी हेल्प करेंगे उस इनिशिएटिव को, उस विजन को अचीव करने में। We have various workshops throughout the year like sketching workshop, meditation workshop, and we also organize various orientation sessions for our freshers as well as the third semesters when they begin their clinical practice. कुछ पाने की हो आस आस, हर अरमा है जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो वार वार, कर दरियाओं को आर पार आशाएं आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अमेजिंग अमेजिंग। आई वॉजेंट होपिंग कि यहाँ पर ऐसा टैलेंट भी देखने को मिलेगा जहाँ पर इतनी मोटी मोटी किताबें हर साल ख़त्म कर दी जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि इतने शार्प ब्रेन में आइडियाज़ और कितने फास्ट आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एक्टिविटीज़ के बारे में कि क्या क्या एक्टिविटीज़ इस कॉलेज में होती हैं और ये वहाँ पे क्या क्या करते हैं। I am Ajay from third year. I am the cultural secretary of the Student Union of Maulana Azad Medical College. I just want to emphasize that apart from being the academic part, we are much more than the doctors. Like here we have different societies, the dance society, the drama society, the music society, the fine arts society and the fair society. Apart from that, there are students who have the international publications in the poetry society also. And apart from that, we have also like there's a batchmate in my batch, part of the under-19 team of the Indian hockey team. Hello, this is Monica from second semester. I will be talking about Minerva, the Fine Arts Society of Mansi, where you can brush up your sketching skills. We have many programs like sketching, painting in fine arts. नमस्कार, मेरा नाम साहिल शाह है और मैं मौलाना आज़ाद में मृच कटिकम द ड्रामेटिक सोसाइटी का मेंबर हूँ।
मृच कटिकम जो शूद्रक का पहला प्ले था उससे नाम लिया गया है। हमारी काफ़ी हैपनिंग सोसाइटी है। वी आर वेरी फ्रीक्वेंट इन परफॉर्मिंग स्टेज प्लेज, स्ट्रीट प्लेज, नॉट ओनली इन कॉलेज के बाहर भी बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, उसमें भी हम काफ़ी एक्टिव होते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स हम बनाते हैं एंड इन गूंज एंड साइनैप्स देयर आर सेवरल पॉपुलर इवेंट्स जो हम काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। नमस्ते, माई सेल्फ संकल्प केशरी फ्रॉम प्रवाच्य, द लिटरेरी क्लब ऑफ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। सो प्रवाच्य जो है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोसाइटीज़ ऑफ मैमसी। इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 विंग्स। तो प्रवाच्य में हमारे पास है वॉक्स पॉपुलाए, द डिबेटिंग क्लब, यानी वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करना। उसके बाद दूसरा अंडर उसके आता है क्वेसेटम यानी क्विजिंग, जो प्रश्नोत्तरी होती है, उनको हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं। तीसरा हमारा एक विंग है गुफ्तगू यानी पोइट्री। तो जैसे हम लोग रिसेंटली हम लोगों ने एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज कराई ताकि हम डिबेटिंग स्किल्स प्रमोट कर सकें, डिप्लोमेटिक स्किल्स प्रमोट कर सकें मेडिकल कॉलेजेस में। हमारा जो अभी फेस्ट हुआ गूंज द इंट्रा कॉलेज फेस्ट, उसमें हमने मल्टी लेवल डिबेट्स ऑर्गेनाइज कराई, एक्सटेम्परी ऑर्गेनाइज कराई। वहीं क्विजिंग में जो लोगों का पैशन है क्विजिंग, उसको प्रमोट करने के लिए हाल ही में हमने मैमसी क्विजिंग लीग की शुरुआत की है, विच इज़ ऑल अराउंड द ईयर। हम हर मंथ 1 to 2 quizzes ऑर्गेनाइज कराते हैं। Hello, I'm Ananya Vadera from 3rd semester. I represent Prodigy, which is the dance society of Maulana Azad Medical College. We have a dance room in our college, in which we practice regularly to fine our skills of dance. And we have a lot of events in our intra-college fest, which is Goonj, and our inter-college fest, which is Synapse. We have stage dances and we have dance charades, games like dance charades, and we have flash mobs. And it's very exciting to be in this society. हेलो, मेरा नाम कोमल यादव है। आई एम फ्रॉम 3rd सेमेस्टर एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग स्पोर्ट्स सोसाइटी हियर, बट आई थिंक यहाँ पे सभी स्पोर्ट्स खेलते हैं। सो वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड टू प्ले एनी स्पोर्ट। वी हैव बैडमिंटन कोर्ट्स, वी हैव इंडोर बैडमिंटन कोर्ट इन सुश्रुता हॉस्टल, and we have basketball courts and table tennis tables. We have swimming pools, gym. Good afternoon, I am Kinshuk Gupta from 3rd semester. I represent Guftagoo, which is the Poetry Society of Mamsi. Doctors are considered to be people who keep on studying every day, but we have a lot of poetry which happens in our campus. So we have 2 major fests in our college, which is Synapse, which is an inter-college fest, and Guftagoo and Goonj, which is an intra-college fest. So we hold many activities all around the year, and we have some people in the society who represent the society in different colleges and also in the mainstream literature. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैमसी में आने से पहले यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, कोई केरला से आता है, कोई गुजरात से आता है, कोई मणिपुर से आता है, कोई राजस्थान से आता है, लेकिन मैमसी में आने के बाद यहाँ सारे मौलानियंस कहला जाते हैं। तो वी आर प्राउड टू बी अ मौलानियंस। स्टार्ट तो होता है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता, कभी नहीं मिलता। कोशिश करो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मिल ही जाएगा। Eternal, it has a lot of strength. यहाँ पर तो बहुत सारी मिलेगी और बहुत सारे तरीके के लोगों से मिलेगी। आपसे दोस्ती, सबसे दोस्ती। बस काश कभी टाइम पे पूरे कर लेता। ब्लड सकिंग। पूरी ज़िंदगी इसके पीछे मत बिताओ, और भी कुछ है दुनिया में। सेल्फी बहुत लिए कॉलेज में और आगे भी लेते रहेंगे। अटेंडेंस की बहुत मारा मारी है यार, 75% चाहिए ही चाहिए। मुश्किल है पर कंसिस्टेंटली कोशिश करो, बाकी सोसाइटीज़ के साथ मैनेज किया जा सकता है। कभी खुशी, कभी गम। कीप से डॉक्टर होवे। उड़न खटोला या जहाँ कोई ना रहता हो। राजा। King of none. वही राजा। A lot of hostels give food, like we have NBH, जहाँ से हम लड़कियाँ भी खा सकते हैं, या PG मेंस भी है, या फिर DC सबसे पास है, नेस्की पे भी खाना मिलता है। We have a lot of places to eat and अपना खुद का हॉस्टल भी। आसपास में बहुत जगह हैं, आपको जगह की कमी नहीं मिलेगी मैमसी कॉलेज में। दिल्ली में कहीं भी घूम लो, मेरे हिसाब से आज तक की सबसे अच्छी जगह जो मैंने दिल्ली में देखी वो आपके बिल्कुल बाजू में जो स्पंदन है वो है। स्पंदन है जो हमारे M गेट है, जस्ट एंट्री पे है। तो जब हमारी गोल्डन जुबली थी उसकी मेमोरियल में उसे बनाया गया था, एंड वहाँ पे एक हमारा मेमोरियल स्टैचू भी लगा हुआ है। जिंदगी उसके बिना स्टेथोस्कोप के बिना ये फांसी का फंदा है। The hospital walls, plinthid with streaks of red, wears a necklace of sleep-necrosed eyes, atrophied hopes, macerated prayers, yawning at the metropolitan diversity of sandals, funguses, callus at each footstep, dreams of a state midway between life and death. A
अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी देश में डॉक्टर टू पेशेंट रेशो 1:1000 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर एक डॉक्टर हो तो पेशेंट 1000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 2017 के एक आंकड़े के मुताबिक इंडिया में ये नंबर जो है 1:921 के करीब कहीं था। अब इस साल क्या हालत होंगे ये हम कह नहीं सकते, लेकिन इट्स काइंड ऑफ क्लोज। इसलिए मेडिकल कॉलेजेस की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे कि आज आपने देखा था MAMC यानी कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का ये कैंपस। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा campussedd@gmail.com पर ईमेल करके। मेरा नाम है रक्षित, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे गुरुवार को किसी और नए कैंपस से।